ਮਲਾਹ ਨੇ ਜਿੰਨਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇੜੀ ਭਰ ਕੇ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਮਲਾਹ ਨੇ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਪੈਸੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲੈ ਤੇ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਠੇਰ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਲੋਈ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਹੁਣ ਸੇਠ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੰਨਾ ਦੇ ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸਨੂੰ। ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਵੜਦੀ, ਰੱਬ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਰਦੀ ਦੀ ਗਰਮੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਨਾ ਅਤੇ ਬੋਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਬ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੰਨਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਬੋਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਸੁਜਾਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੇੜੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਲੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੋਨੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸੇਠ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਲਾਹ ਆਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਕੋਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਤਾਰ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਲੱਗੇ ਕਹਿਣ ਸੇਠ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਘਰੇ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਪੂਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਲੇ ਬੇੜੀ ਨਹੀਂ ਠੇਲੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਠ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਿਆ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾਤਾ। ਸਠਿਆਣੀ ਉੱਠੀ, ਮਾਂ ਲੋਈ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਤੇ ਬੇੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਦੋਏ ਜੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਉਸੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਤਰਲੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਉਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਕਬੀਰ ਜੀ ਉੱਪਰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਹੈ ਰੱਬ ਜੀ, ਆ ਦੇਖਿਆ ਆ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰਨੇ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਬਣਾਏ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਹੱਥ ਜਾਣੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤਰਲੇ ਹੀ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਫਰਿਆਦ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣੀ। ਜਿਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਉਹ ਪੱਥਰ ਹਿੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਪੱਥਰ ਹਿੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ
पत्थर पानी च वड़ गया। पत्थर पानी च वड़ गया। पत्थर ऐसा चल रहा है पानी के ऊपर जिदा बेड़ी चलती है। जिस वक्त वो बेड़ी के अगों निकलिया पत्थर ते हुण सेठ पुछदा और मलाह ਇਹ कौन है? ते मलाह कहता आ कहता यही है जिन्हों धक्के मारे ने कबीर है। ते हुण ना दसणिया होया सी। कहता ये कबीर है? कहता हाँ। ते कहता मैथों तो बड़ा जुल्म हो गया फिर मैं तेनों धक्के मारे। मैथों तो बड़ा गुनाह हो गया मैथों तो जुल्म हो गया। अपने आप नोचदा होया जिस तरह बेड़ी तो थले उतरता है इसी तरह कबीर के पीछे पीछे भजया। जिस वक्त भज के जाके कबीर जी को रोकया और रोक के चरना जी गिर पिया। महाराज मैथों गुनाह हो गया साथों गुनाह हो गया असी दोषियां सारे ने कृपा करो। कबीर लगा कहना सेठ मैं तो तेन कुछ कहा भी नहीं। नहीं महाराज तुसी तो कुछ नहीं कहा पर मैं तो बहुत जुल्म कर बैठा। मैं एक रब के प्यारे नूं धक्का मारिया। मेरे ते कृपा करो मेरे ते रहम करो मैनू बख्शो। ते कबीर जी पुछदा है भलिया तेरा नाम की है? कहता जी मेरा नाम राम का दास। वो कहता तेरा नाम राम का दास है ते तू राम के दासा नूं धक्के मारदा। हुण चलना तो नहीं उठता। कबीर जी ने बाहों फड़ के ठालिया। ठाल के ते फिर जिस रथ के सेठ नूं लैण वास्ते अगे तो रथ आया होया सी उस रथ ते आप नहीं बैठे ते कबीर जी ने माता लोई नूं रथ ते बैठा के ते आप पीछे पीछे उस रथ दे भजे गए ते अपने गुनाह बख्शाए। गुनाह बख्शा के ते उस परमात्मा दे नाल उन्हां सेठ सठियाणी नूं भी जोड़ के ते उन्हां दा रूह दा भी कल्याण कीता। आपां संगत विच आउणा है गुरु घर दे विच आउंदे आ। गुरु साहब कहते हैं मंदिर जाओ या गुरुद्वारे जाओ या किसी मसीत जाओ या किसी धार्मिक जगह किथे भी जाते हो अपने आप को खाली करके आना है। कदे भी अपने आप को ऐ नहीं समझना कि मैं सब कुछ जानता हाँ। अपने आप रूपी भांडे को खाली करके आना है। जेड़ा भरिया होया तो कुछ नहीं पैदा खाली कुछ ना कुछ पै जाता है। जे असी खाली करके आवांगे तो कुछ पा के लै जावांगे। एक शब्द भी हिरदे च वस जावे तो भले जिंदगी सवार के रख देता है। आपां प्यार ओहदे नाल पाउणा है जिहड़ा उस प्रेम उस प्यार के राह नूं जानता है। माड़े बंदे कोल बैठण दे नाल एक रब नूं याद करता है। एक आम बंदा माड़े कर्म करता है। माड़े कर्मों के विच बंदे का जीवन का नष्ट से भ्रष्ट हो जाता है। अच्छे कर्म के नाल जुड़न दे नाल अपनी जिंदगी है जिहड़ी वो सवर जाती है। ना करे
ਪੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਐ ਬਗਨਾ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਜਰੀ ਉਮਰ 84 ਬਰਸ चार वेद फरमाते हैं सुनी आवाज नहीं बोले होका मार जगाते हैं संत महात्मा मास्टर जानो सब श्लोक पढ़ाते हैं पार्थ रूप संत परमेश्वर ठोकन कर जाते हैं परमात्मा गुरु कृपा दे नाल परमात्मा ਨੂੰ याद करदियां करदियां ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ परमात्मा ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕ੍ਰੋਧ ਹੰਕਾਰ ਇਹ ਫਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦ ਆਪਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭੁੱਖ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦ ਉਹ ਜਪਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚ ਔਗਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਅੰਦਰ ਪਾਏਂਗੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਰੱਬ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਿਆਈ ਹੈ ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹਦੇ ਖਿਆਲ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤੇ ਜਗ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਆ जब अपने आप को नहीं जित सकते तो जग को नहीं जितया जाएगा अपने आप को साफ करना है अपने हृदय के अंदर अपने कन्ना के राही अच्छे गीत संगीत सत्संग बाणी जेड़ी सानू अंदर जाके फायदा करे जेड़ी अंदर जाके सानू अंदर चौ पैदा कर दे खुशियां ते खेड़ा पैदा करदियां ने ये चीज़ां माड़ियां चीज़ां जेड़े आपां खाने आ जेड़े काम करते हैं वो साडी बुद्धि नूं भ्रष्ट करते हैं अगर आपां अच्छी चीज़ पावांगे इन्हां अखां दे नाल उस परमात्मा दी इशारे दे विच लाओ किसी राग पराग दे विच लाओ कन्नां नूं भी उसे पासे लाओ जिस पासे लाण दा फायदा है अच्छियां चीज़ां जब आपां हृदय च पावांगे ते ऑटोमैटिकली जिवें एक
एक फुल होंदा ना, फुल हमेशा महक बनता है। वो फुल इंसान भी बन सकता है जब ये अच्छिया चीजा का ग्रहण करेंगे, अच्छिया चीजा पाएंगे तो एक उस परमात्मा के नाल, उस पारस के नाल असीं जुड़ जावांगे। परमात्मा के नाल तां ही जुड़ सकते हैं जिथे तक असीं अपने आप नूं साफ नहीं कर सकते, जब तक आप नहीं जुड़ सकते। आप एक बोलदे शेर मारदे कहते हैं, धोती मैली साबन थोड़ा, बैठ किनारे रोवेगा, पापा वाले दाग नहीं मिटने, नाले रोवेगा ते नाले धोवेगा। आपां ओ पापा के दाग टाइम नाल मिटा सकते हैं। बुढ़े वाले असीं उसनूं ओ टाइम जब निकल गया, जागो रे जिन जागना, अब जागण की बार, फिर क्या जागा नानका जब सोने पैर पसार। जब इंसान का बुढ़ा हो जाता है, जब राम नाम भी सही ढंग नाल नहीं जपिया जाता, बोल भी क्यों दंद मूंह च रहिंदे नहीं। अगर कोई ना सीधा नाम लेना तो कोई होर ही समझे होते चो निकलना है। उस परमात्मा नूं टैम दे नाल ही जपण शोभा देता है। वक्त बीत जाए, बुजुर्गी आ जाए, फिर नाम भी नहीं जपिया जाता, फिर तो एक डर ही आप रब करते हैं। पास रूप संत परमेश्वर वो पास बन जाते हैं, साफ हो जाते हैं। जब बंदा अपने विचार सही कर लेता है, ख्याल सही कर लेता है, हिरदे जो आवाज भी सही आन लग जाती, तो ऐ जान भी आप एक दुध बन गए। दुध जब बन गया तो फिर भी आपको 5 बूंदा की जरूरत है। जिथे आप कहने 5 सब जिसके हृदय हुए पूर्ण पुरख कहाए, धर्मराज का सर्प छिनिया भाग गए जमलाए। फिर जन्मा जन्मा के जेडे साडे पाप ते प्राप्त होंदे ना, वो खरू हो जाते हैं गुरु कृपा दे नाल। अमृत जोत अब देख प्रकाशा सतगुर भेद बताए। वो अमृत जोत जी साडे अंदर प्रकाशमान है, वो गुरु जगाता है। और हृदय रूपी जोत दे विच जब जग जाती है तो सानू उस सत और सच के बारे पता लगता है भी सच क्या है या झूठ क्या है। पास रूप संत परमेश्वर छू कंचन कर जाते हैं। कहते वो भी चंदन हो रहे जो रहे चंदन के पास। कहते जो हंकारी पुरुष होता है ना, वो कहते चंदन के नेड़े एक बांस का पेड़ा खड़ा है। होर जो नीवे दरख्त दसदे न, चंदन की अपनी महक पूरी हो जाती है, असर हो जाता उन्हां ते। पर सच जानियो, कहते जेड़ा एक बांस का पेड़ा चंदन के कोले खड़ा होवे वो चंदन नहीं होता, क्योंकि उसकी ऊंचाई बहुत लंबी है। उन्होंने ऐ लागत एक मान लाल है। इसी तरह जो हंकारी पुरुष है, कामी है, क्रोधी है, लोभी है, हंकारी है, जेदे विच इहियां चीजां मौजूद न, ओदे हृदय च प्रेम नहीं, ओदे हृदय च दया नहीं,
ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਚੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਆ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਣ ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ एक नर्क जीवन बना के इसे व्यतीत करता है। पांच रूप संत परमेश्वर छू कंचन कर जाते हैं। ते जेड़ा वो रब है, हुण वो रब एक पारस है, वो परमात्मा एक पारस है। ते असी एक वादा एक नीचो कर लिया कि असी परमात्मा नूं मिलना चाहते हैं। शरीर की जी अंत मंजिल है, वो प्यारो संसार घाट तक है। अंत जी शरीर की मंजिल है, वो संसार घाट तक है। जी आत्मा की मंजिल है, वो परमात्मा तक पहुंच है। वो परमात्मा के देश जाके ही वो पूर्ण हो सकती है, संपूर्ण हो सकती है, मुकम्मल हो सकती है। हुण उत्थे अपनी रूह नूं पहुंचाउण वास्ते आपां नूं कुछ यतन करना पैना। एक तो गुरु की ओर चाहिए है, क्योंकि गुरुआं कोल जुगती है उस रस्ते की। होर किसी कोई भी जुगत नहीं है कि जिहड़ा सानूं रब दे देश की कोई सार दसे, कोई राह दसे। जाना आप सारे नहीं उत्थे ही आ। आप कोई भी नहीं चाहते कि असी नरक दे विच जाइए, नहीं। आप सारे ही चाहते हैं कि असी स्वर्गां च जाइए। हुण जे स्वर्ग दे विच जाना है, सच जाना जिहड़ी आप कई बार पहले भी वचन कर चुके हैं, इस शरीर को भी कर्म माड़ा हुंदा है। हुण आप सहज सुभाए कह देने अगला जान बिठा के ना देखा। शरीर नाल कोई साथों गुनाह हो जाता, शरीर को कोई भी साडे को कोई पाप हो जाता, और इत्थे दी सरकार सानू सजा दिंदी है। आ देखदा नहीं किसी नूं 10 साल दी, किसी नूं 20 साल दी, किसी नूं 50 साल सारी जिंदगी उत्थे बिता देंदे न। बाहर के मुल्कों के विच ते दसदे न 100 साल तक सजा दी जाती है। अगर उस बंदे का प्राण निकल जाने की जिंदगी ना हो, कहते हैं उसके शरीर मरी हुई लाश को भी सजा देते हैं। जिसे तक वो सजा पूरी नहीं होती, जब तक वो संस्कार नहीं किया जाता। शरीर को सजा, शरीर नाल आपां कर्म करते हैं तो सानू इत्थे दी सरकार वो सानू गल दिंदी आ। पछतावा करते हैं, बनता कुछ नहीं। कई ने अपनी पछतावे की अपनी जिंदगी को बतीत अपने स्वासे पूरे करके चलाना कर जाते हैं, पर अंदरला हिसाब किताब से धर्मराज कोले है, उन्हें हमें बाकी पे है। वो जो आपने बीज बीजा होया है, उन्हें धर्मराज सजा देता है। जो आप अंदरों करते हैं, एक तो शरीर नाल कर्म हो गया, एक जरा साडा अंदर मन बैठा, मैं ड्राइवर भी कहना कई बारी भी आ शरीर नूं मैं गड्डी कहना आ, ते कहते भी गड्डी नूं ड्राइवर वधिया चाहिए। जे कोई नूं कच्चा ड्राइवर देता कहना फिर खुंजे तोड़ता है। ते इस गड्डी का जो ड्राइवर है उन्हें चेंज करना पैदा आ। जिसे आप कह दें मन वेचा है, सतगुर के पास तिस सेवक का कार्य रास। गुरु अपनी जुगती के नाल मुक्ति दिंदा आ। औखा लख 84 का गेड़ कहते पूरे करेगा कि तू ज्ञान बंदे। आ जरा 84 का गेड़ है, 84 का गेड़ साडा क्या सानू ये साडे बंधन
ਮਹਿਲਾ ਮਾਨੀਆਂ ਛੱਡ ਰਵਾਨਾ ਹੁੰਦੇ ਵੱਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜੱਜ ਵਜ਼ੀਰ ਜਾਂਦੇ। 1,24,000 ਪਕੰਬਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ ਮਕਾਮੀਆਂ। ਇਸ ਮਕਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਕਾਨ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਖਾਲੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਆਏ ਹੋਇਆ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਕਮਰਾ ਦੂਜਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜਾ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ 8-10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਸੇਵਾ ਲਾਚਾਰਾਂ ਦੀ, ਬੇਸਹਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਸੰਗਤ ਦੀ, ਜੋੜੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਫੁਲਕਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅਲਾਹੀ ਮਕਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਸ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਖੋਟੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਰ ਕਿਉਂ ਸਤੀਆ ਨਾਲ ਜਪੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਨ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਰੱਬ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਡਰ ਕੇ ਵੜਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡੀਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚੀਏ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਟੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਤਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨ ਤੇ ਪੁੰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਰਮ ਭਾਰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਯਾਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਨਿਆਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਪ ਦੇ ਚਾਲ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਠਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚਣੀ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਰਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਦਾ ਦੀ ਸਦਾ ਦਿਵਾਲੀ, ਆਠੋਂ ਪਹਿਰ ਬਸੰਤ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਜਪਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਦੀਵਾਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਬੋਲਿਓ ਨਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਲੜਦੇ ਨਿਕਲ ਜੂਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ 'ਚ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਪਰ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਾ ਲਈ
ਉਹ ਦੁਆਲੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਰੂਪ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ। ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ? ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। पास रूप संत परमेश्वर छू कंचन कर जाते हैं। फिर जेड़े पास आप तो है परमात्मा, पर अपने भगत को भी वो अपने वर्गा ही बना देता, उन्होंने भी पास बना देता है। जेड़ा संतां दे नाल जुड़ गया वो पास हो गया, ते जेड़ा पास हो गया उन्हां नाल कोई व्यक्ति बेचारा होर भी जुड़दा आके वो भी पास का रूप हो जाता। जिस तरह कहते आप वो भी चंदन हो रहे तो रहे चंदन के पास। बादल रूप संत जन मानो। बदल वर्खा करता धरती को हरिया भरिया कर देता। बदल वर्खा करता चीजा अब बड़िया जी धरती पे घास बूटियां जीव जंतु जेडे होंदे ने उन्होंने जस वक्त को वर्खा करके हरिया भरिया करके ते एक हरियाली बना देता आ। धरती ते हरियाली हो जाती आ। किसी तरह गुरु ज्ञान की गंगा बगाने आए। एक ज्ञान की गंगा है, सुख संभाल के लै गोते। गुरु जब एक कथा करता है, गुरु एक बाणी करता है, एक गंगा चल रही है। जिन्होंने सोची आ गई हो तो टुटियां मारते सच जानो भाई असी कई बारी जिक्र भी करते हैं गुरु घर से जाना है, किसी तीर्थ यात्रा से जाना है, किसी मंदिर गुरुद्वारे चले अपने आप से मन बना के चलना है। अपने अज तो फैसला करना है। बहुत सारे साडे विचौकड़ हैं। आप ये सोच के चलना है भी अज कुछ ना कुछ हृदय चो कट के आना है। कोई विचार बदलाओ। गुरु घर के आने का, संगत के बैठने का, लाहा लैन का यही फायदा है। असी कोई अवड़ कट के जाइए, कोई भैड़ा विचार बदल के जाइए, कोई भैड़ा ख्याल बदल के जाइए, कोई अच्छा शब्द, कोई एहो जिहा बोल चलते गंगा नहीं है। ते जे आप एक शब्द फड़ के भी ना ला गए फिर तो भी जल में खड़ा प्यासा, तो भी पानी में खड़ा सी, प्यास लगी हुई सी, पर एहो जिहा लालच पै गया। एक कपड़ा होर धो लिया, एक कपड़ा होर धो लिया, पानी तो प्यासा का मर गया, लेकिन एक चुंझ ना पा सकिया। इसी तरह आप सुनते सुनाते हुए आप अपने मन के एक मता पका के आना है कि नहीं तो करके आना है कि आज हृदय चो मेरा मैं एक कौड़ा बोल बोलता हाँ, मैं विरथा बोलता हाँ, मैं नजायज बोलता हाँ, मैं बड़िया का सत्कार मान नहीं करता, मैं मां बाप की कदर नहीं करता। कोई ना कोई शब्द ऐसो फड़ के लेके जाना है। आप कहते भी 84 के गैर तो बंदा नहीं कर सकता। ते सच जानियो आप एक एक विचार, एक एक शब्द भी आप फड़ के जिवें आप इकट्ठा करते हैं, एक एक शब्द को हृदय च वसाओ घेर के, ते सच जानियो बई आप गिन के
विचार बदलाद्या होया एक विचार वसाद्या होया अंदरों सीट वेली होगी ते ताई आपां किसे नूं बिठा सकदे हां। जद एक सीट ही वेली नहीं उत्थे आपां किस नूं बिठाएंगे। इत्थे आज आपां मंजे ते जां कुर्सी ते कोई आसन ला के बैठे हां अपने कोल जगह नहीं जे उठो आपां किसे नूं उठा के ते ताई उत्थे कोई दूजा बैठ सकदा है कि जगह है नहीं। साडा अंदर दे पहले बुक है आपां जद एक शब्द नूं हिरदे चों किसे माड़े विचार नूं हिरदे चों कढांगे चंगा शब्द साडे अंदर एक घर बना के बैठ जाएगा। तुसीं सच जाने हो ते फिर इसे तो नहीं जब साडे हिरदे विच कई चंगे आ गए असीं अपने जीवन नूं सानू काल नहीं मार सकता। असीं जिउंदियां जिउंदियां उस अकाल दे विच जाके रह जावांगे। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਜਿਹਾ ਪਕਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ कितने स्वभाव बदलाओ कितने विचार बदलाओ कितने ख्याल बदलाओ कितने कर्म बदलाओ कितने सोच बदलाओ। जिन्हों गल्लां दे नाल आपां निंदिया चुगली ते विरथ दीयां गल्लां अंदर सुन के पाउंदे आ नहीं। इन्हां गल्लां दे नाल कोई अच्छी बाणी कोई अच्छे विचार कोई अच्छी कमाई वाले कोल बैठना है किस रब दे प्यारे कोल बैठना है जिन्हों बैठदियां ਉਹ ਰੱਬ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਦਲ ਰੂਪ ਸੰਤ ਜਨ ਮਾਨੋ ਸੰਤ ਇੱਕ ਬਦਲ ਹੈ। ਜਾਗ ਸਾਫ ਰਸਤਿਆ आप जगाउण आए उठ सुत संभाल के लै घोटे गुरु ज्ञान दी गंगा वगाउण आए बिना मोह तो कदर ना कागजां दी तेरे मथे नूं मोहर लगाउण आए हाथ अपने दान दी करी सेवा हर किसे तो दान मंगाउण आए। दसां गुणां दी किरत कमाई करके ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ 10 ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਆ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਕਿਆ ਕੁਛ ਬਚਿਆ ਗ੍ਰਸਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਭੋਗ ਲਿਆ पर गृहस्थ दे विचों आपां जेड़ा समा कढदे हां आपां जप करदे हां तप करदे हां सेवा करदे हां सिमरन करदे हां इन्हां हत्थां दे नाल आपां सेवा करदे हां आपां दुखां तो रहत होवांगे शरीर नूं सुख मिलेगा। नाम दे नाल असीं उस परमात्मा नूं याद करदे हां साडा अगला ते साडा इह जन्म सवारिया जाएगा। जीवन नाल सिमरन कीता होया साडा लोक परलोक सुखी होएगा। हाथों के नाल कर्म कीता होया सानू शरीर सुख की प्राप्ति मिलेगी। बादल रूप संत जन मानो
मेघ नाम बरसाते हैं। जे कोई नाम बने जो असुजल का भरम मटाते हैं। अमी कोठ पर बैठे साधु अमृत नाम बुलाते हैं, भव सागर थी पार पूर्ण बिना जहाज लगाते हैं। जिस मंजिल में सैंतु 100 मंजिल दखलाते हैं, अज्ञान अंधेरा दूर करते गैस ज्ञान जगाते हैं। बाज विवेक छोड़कर पीछे ये मन पंछी फल जाते हैं। संत जना समझ ललारी ये रंग मजीठ कराते हैं। दुनिया में विच कर्म अमीरी ये नाम फकीर सदाते हैं। वड्डा मर्तबा संत जना दा और राजे शीश नवाते हैं। दुनिया बीच बादशाह जेड़े ये नाल अनु बुलाते हैं। शाहूकार तुला में मालक ये धीरज धाम खिलाते हैं। शीतल रूप संत परमेश्वर छोड़ जाते हैं। संत स्वरूप खाक बन बैठे खाक ऊपर लेट जाते हैं। खाक का मतलब ये है अपनी इच्छा अपनी वासनावां अपनी कामनावां चकना चूर कर देना। जिथे खुदी दूर करो तन मन चूर। जिवें गुरु साहब ने एक वचन किया, गुरु साहबा ने परमात्मा रब खुश होया ते कहन लगा, ओ भगता मंग मैं तेरे ते बड़ा खुश हाँ। तेरे कर्म धर्म ते तेरी बंदगी च मैं बहुत खुश हाँ। कुछ ना कुछ मंग। गुरु साहब कहने लगे, कहता है भगवान जिसनों परमात्मा के दर्शन हो जान, जिन्हों परमात्मा खुद पूछे तेन क्या चाहिए, कमी तक रह नहीं गई। कमी तक रह नहीं गई। फाइनल दर्शन पदार्थ जेड़े मेरा हज हो गया, मेरा जिंदगी कल्याण हो गया। प्रभु थोड़ी बड़ी रहमत आ। कहता भगता मंगना बड़ा खुश है, मंग कुछ ना कुछ मंग। कहता मुझे देना चाहते हो दाता, ते फिर जेड़े तेरे जपण वाले न उन्हां दी धूड़ मैनू बना दो, क्योंकि मैं ना पहुंच सका। जेड़े रब दे देश जान वालियां रूहां न उन्हां दे चरनां दे नाल लग के मेरी धूड़ तेरे तक पहुंच जाए। कोई इहो जी कृपा कर दिओ। ते भगवान लग्या कहन, कहता वाह भगता चरना च तो मैं तेनू पहले ही मिला लिया सी, पर कुछ रूहां खुद संत मेरो रूप है खास। मां बाप जेड़ा है वो धियां पुत्तां नूं जन्म दिंदा। मां बाप धी पुत्त नूं जन्म दिंदा। जिहड़ी सत संग है परमात्मा नूं जन्म देती है। ये परमात्मा नाल जोड़ती है, ये परमात्मा दे नाल मिलाप करा देती है। जिहड़ी सत्संग है इसकी भी सानू सत्संग क्या है? सत्संग साडे जिहड़े जरीले वचन जिहड़े साडे कौड़े वचन तुसीं सच जाने हो, इन्हां हिरदे दे विच वास करके उन्होंने ठंडा कर दिंदियां ने। जिहड़ा गुरु दा शब्द है सत्संग जिहड़ी है उन्हां वचनां नूं इक ठंड पैदा कर दिंदी है। शीतल शांत अंदरला जिहड़ा शांत हो गया ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਮੌਲਾ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਰੌਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ।
ਨੂੰ ਬੇਸਮਝੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ शब्द नहीं लग गए उन्होंने रोजे खत्म हो गए। जिस जन की एक ऊपर आशा उसकी कटिया जन्म जन्म की भाषा। जिन्होंने एक दावत ले ली, जिन्होंने गुरु तू सच जानी एक जन्मा दे ते क्या है, तो बंदा जन्मा जन्मा का पापी। पर गुरु ने एक अपने वचना राही कह दिता आ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਜਨਮ ਦੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰੂਪੀ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਬਣ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਾਹਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਸਾਡਾ ਆਤਮ ਰੂਪੀ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਸਾਬਣ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਭਲਿਓ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਿੱਜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਉੱਠਦਿਆਂ ਬੈਠਦਿਆਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਜੋਤ ਨਿਰੰਜਨ जोत निरंजन अखियां बीच तेरे मन प्रकाश करै। चल पुतली प्राण सही और सच्चे सहज निज धार चढ़ाए। अपने आप पर निष्ठ पका के अपने आप का ध्यान कराए। ऐरा पिंगल सुखमन एक मला के और सुखमन से तीन वास कराए। जीवत मरै गुरशन को पकारा मुड़क दीनी मरता वो सच्चे दरबार में वास कराए। उल्टा हंस तो बढ़ती काया सलामी मकानी का गुरु मेल कराए। बोल गुरु महाराज की जय। आप सारिया ने महाराज ओ परिपूर्ण परमात्मा तुहाडा सुनिया, मेरा कोई वचन सुनाया होया जो तुझ बुद्धि तो कोई शब्द निकलिया है, वो थोड़े मेरा सुनाया किस लेखे लगे, थोड़ा सुनिया कहाँ लिखे लगूगा। जे अज आप एक फैसला करना है कि एक औगण अपने सारिया ने गुरु औगण कबूल करता है, गुरु औगण लेंदा है, गुरु औगणा की भेटा मंजूर करता है। अज अपने सारिया ने मन बनाना है, जैसे जदों भी आपने आना है, हर महीने की पहली ऐतवार को आपने आना है। ते ऐतकी आपने एक सत्संग एक हफ्ता आगे बढ़ा दिता सी, थोड़ा जा कोई शादियां का विच दिन आ गया सी, इस करके सत्संग पहली ऐतवार को होया नहीं। संतां की भी बेनती है इस समय जो समा कट के आके जरूर दर्शन दिया करन। और अपने अजी तो फिर मैं बार बार कहना है, आज कोई ना कोई औगण छड़ के जाना है, इसे सोच विचार करके अपने मन नाल बना के ते कोई ना कोई गुण इथों लेके जाना है। एक एक करके आपने आपो 84 के गेड़ चो जीवंदिया मुक्त होना है, जीवंदिया आपने मुक्त हो जाना है। जेड़ा काल है, काल सानू लैन आवे ते असीं उस तो पहला उस अकाल दे विच उस जेड़ा काल नू बनाउण वाला है असीं ओहदे विच समा जाइए ते काल साडा कुछ ना बिगाड़ सके। उस परमात्मा नाल आपने जाके सांझ बनानी है ते जिउंदियां मुक्त होना है। मर के गल नहीं मुकदी ते एक विचार बदला के आपने अपने हृदय को साफ करके एक गुणाली गुथली बना के अपने हृदय च धारण करना। बोल श्री गुरु महाराज की जय। हुण लगन प्यार है तो उन शक्ति जरूर जाना है। दो फुल के। बोल श्री गुरु महाराज की